Amit Kumar, thank you so much for joining me on ETimes. It's lovely seeing you. I think it's 5 years, 6 years? Yeah, 4 years, maybe. 2016, 2016. when I came 6 from years. London show के बाद. You still look the same. It's 7 p.m. here, but you last time told me that मैं दोपहर में सोता हूँ. आज सोए कि नहीं? Yeah, मैं सोया. मैं सो के जागा अभी. How was the response? I mean, you said it was great, but anything happened? Any fan? बहुत अच्छा हुआ any शो. moments? बहुत very well received show, because it was not only me, myself. Sudesh was there, Sadhna Sargam, then Mohammed Salamat was there, and then और 2-3 singers थे. Kavita was there, Kavita Krishnamurthy, and there was a band, about 20-25 पूरा band था. प्यारे भाई was there on the stage. That made a difference. But बहुत अच्छा हुआ. मतलब it went away, only songs, and all old songs, 60s, 70s, 80s, people enjoyed. वहाँ पे रिपोर्ट ऐसा है कि बोले कि we went back, मतलब कि they were so engrossed with all the songs. My father's songs, Rafi Saab's songs, Lataji's songs, of that time. मुझे सिर्फ 7 गाने मिले, 7 में मैंने अपना जो भी कमाल किया, but very good response, very good. So I remember you telling me last time, Amit, that बाबा ने आपसे कहा था कि आपको अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप हट जाना. अभी क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि आप लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि यू आर नॉट सिंगिंग, यू आर हार्डली सिंगिंग इन बॉलीवुड. What is happening? I mean, have you decided to just move away? मैं बहुत पहले निकल चुका हूँ. क्या विकी, you are asking me the same. No, old... I'm saying what I'm trying to ask you is that if an offer comes along, a good offer, a good producer. ऑफर आएगा भी नहीं. ऑफर आएगा भी नहीं और ऑफर आना भी नहीं चाहिए. बिकॉज आई एम टोटली मैं हूँ नहीं यहाँ पे. आई एम इन माई ओन डोमेन एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई एम विद यूट्यूब, माई ओन चैनल, you know it. Yeah, that is and it's doing very well. And I'm getting dividends. I'm very happy. What else do you want? Why you want to go back to that jungle? I don't want to go there. I had my time. मैंने वहाँ पे काफ़ी हिट मेरा टाइम था. Everyone has, सबका देखिए ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ. It's like a rooftop. You go there, you stumble down. किशोर कुमार was an exception. He came. वो लक्ष्मी जी ने बोला था पिताजी को, लक्ष्मीकांत जी ने बोला आप एक एक्सेप्शनल केस हो. आप ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे अगेन यू केम बैक बिकॉज ही हैड हिज वॉइस. तो एवरीवन कैनॉट बी लाइक हिम. इसमें अगर कोई डिबेट करो तो आई थिंक आई विल विन. बट आई डिड माई, आई सॉ माई सक्सेस, आई सॉ माई फेल्यूर्स, and now today I am sitting, I am doing my own compositions, and I am very happy. I have been accepted, and people are, you see the comments of my, if आप अगर देखते हो YouTube में मेरा comments देखिए आप, 99% people are enjoying my compositions. इसका मतलब क्या है? And they are not mentioning कि please why don't you come and sing in films. They are not. एक तो पूछते हैं you are so the most underrated singer, and oh my God, I feel so happy also at the same time. I feel अरे यार. No, but I understand that you saying कि मैं हट चुका हूँ वगैरह, but बहुत पहले. is it really that only stems from your decision कि मुझे हटना है, या फिर ऐसी एक स्टेज आई थी that work started drying up? You said you go up and then you come down. ऐसा ही होता है with everyone. I am not an exceptional. सबके साथ तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता ही है. हाँ, ये my offer is open. अगर मुझे कोई बड़ी पिक्चर में कोई गाना गवाता है, definitely I'll sing. That's what I asked you. I am not a monster यार. I am a human. I am staying here. I am very much here in Gauri Kunj and Juhu Thara Road. This is my father's bungalow. We stay here. मैंने आपको पहले पूछा तो आपने कहा कि नहीं offer. No, वो तो that way I am no more, because I can't go out with a begging bowl and say please give me work. I have my reputation. I have made my place here, and I'm doing shows. आज जून में मेरा 8 shows है, 8 shows. मैं कभी सोचा ही नहीं. मेरा मैनेजर बोला आपके 8 show है. My God, जून में तो I'm doing well. गाड़ी चल रही है, चलती का नाम गाड़ी चल रही है. Are you listening to today's music? No, I don't listen to any today's music. Nothing. Today's what music? Hindi popular music? I don't listen. Movies. I don't. इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो आई एम बीइंग वेरी ये कि नो मैं
I'm not a mean person. It doesn't come out from within. I don't listen to old music also. मैंने बहुत सुने हैं, पिताजी के गाने, लता जी के गाने, रफ़ी साहब के गाने, all the music directors. I can listen any time. It's not necessary. I am more on my creations. Okay. I am doing. मैं उसी में खुश हूँ मैं. I'm telling you, I'm very happy. I am no more in this rat race. तो मैं बहुत पहले से ही निकल चुका हूँ. Okay. Let's talk about Lataji. I mean, tell us, Amit, the moments that you spent with her. When did you last speak to her? I was out of touch with her for a very long period. Last I met her was maybe 8-9 years ago. We sang a duet about 10-15 years back. वो YouTube में गाना इतना हिट है अभी. वो कौन सा राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था, मैं जिस दिन भुला दूँ. वो गाना आप देखो अभी कितना हिट है, कितने 3-4 मिलियन व्यूअरशिप. इट्स ए हिट सॉन्ग. दैट वाज द सॉन्ग विच वी डिड इन द 90s. उसके बाद हम मिले थे एक दफ़ा. मैंने एक बंगला पिक्चर में म्यूज़िक दिया था, अमानत करके. तो आई वांटेड आशा जी एग्रीड एंड शी sang मेरे म्यूज़िक में. लता जी ऑल्सो sang 2 songs. तो वो एक रिकॉर्ड रह गया मेरा, कम से कम मेरे म्यूज़िक में बोथ द सिस्टर्स हैव sung. एंड अबाउट हर मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट किया हूँ, बट आई वॉज नेवर सो क्लोज in that way. And she has seen me, she has maybe carried me when I was a baby. Or always, whenever I used to sing with her, जब भी मैं उनके साथ गाता था तो मुझे always she used to give tips. तुम अच्छा गा रहे हो, ऐसे करो, ऐसे करो. मतलब she was very, reserved. I think when we use the word, I've always said one of the greatest singers. She was the greatest singer, according to me. Not one of the, she was the greatest. In popular music, she was the greatest. When it comes to her association with your dad, I mean, it's बहुत पुराना. List of songs is. Their first meeting ही कितना interesting है. First meeting, मतलब कि पहली बार जब she herself spoke on when there was a documentary on my father's Zindagi Ek Safar. So she mentioned that how I met Kishore da. We were traveling on the same train. मैं मलाड में बैठी ट्रेन में, मलाड से बॉम्बे टॉकीज जा रही थी. मलाड सॉरी फ्रॉम महालक्ष्मी स्टेशन से सेम डिब्बे में किशोर दा भी बैठे, मैं भी. एक दुबला पतला सा आदमी, कुर्ता पहना हुआ, गले में मफलर, हाथ में छड़ी लिए, कुछ ना कुछ कर रहे थे. ही वाज ऑलवेज डूइंग, हिल रहे थे. तो फिर मैं उतरी मलाड स्टेशन में, टांगे में बैठी तो वो भी टांगे में बैठा. मैं बॉम्बे टॉकीज में अंदर गई टांगे में, वो भी सेम टांगे में. तो मैं तो कौन पीछा कर रहा है मेरे पीछे, सेम आदमी. तो फिर वो अंदर मैं रिकॉर्डिंग थिएटर के अंदर गई, म्यूज़िक रूम के अंदर खेमचंद प्रकाश जी थे. तो जल्दी से जाके मैंने कहा कि ये कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है. तब से मैंने बोला कौन है, बोले पता नहीं, देखिए ज़रा. तो देखा तो बाबा बोले ये तो किशोर है, अशोक का छोटा भाई है, तो बहुत अच्छा गाता है और मैं इनके साथ तुम्हारा एक डुएट प्लान किया. तो दैट वाज द फर्स्ट डुएट इन द फिल्म जिद्दी. देवानंद के लिए, देव साहब के लिए पिताजी ने गाया था. कौन आया रे कौन आया. तो वहाँ से जाके जो उनका शुरू हुआ, तो इट वाज लाइक रिलेशन लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, मोर लाइक अ फ्रेंड. और वो बहुत उनका जो मजाक चलता था दोनों में. लता जी वॉज वेरी विटी दैट वे, दिखाती थी ऐसा, लेकिन बाबा के सामने शी वॉज वेरी ओपन. वो बाबा हंसाते थे एंड ऑल. आई कैन नॉट से, मतलब अनसेंसर्ड ये सब दोनों में, बट दे यूज्ड टू ऑल दोस जोक्स. एंड ये गाने के ऊपर भी लोग जोक्स करते थे. हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसा होता था, बाप बोलते देखो अभी लता ये जो मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर है, ये जो नोट बोलेगा मुझे मालूम है यही नोट है, यही होने वाला है. बोले इसे कैसे मालूम है, मुझे मालूम, देखो देखो देखो, हाँ देखो वही वो नोट आया. तो बोलता आपको कैसे मालूम, बोले मुझे मालूम है. क्योंकि वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वहाँ से हिलेगा ही नहीं. मतलब दे वाज सो एक्सपीरियंस, दे कुड सेंस इट. ये बट ये वही ऐसे ही करेगा वो. बट आपको अगर मैं पूछूं कि बेस्ट गाना उनका एक, आई नो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज. Very difficult to choose. Choose one. Very, very difficult.
बहुत बहुत गाने हैं उनके, मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब कि जैसा वो मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गाना खूबसूरत हसीना, बिकॉज इसलिए पसंद है कि वो पहली बार मैंने उनको सामने से देखा था. आई वेंट टू द स्टूडियो एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई सॉ लता मंगेशकर. और पिताजी ने मुझे पहले से घर से बोला था, बीज वेरी ये शी इज़ वेरी, मतलब गुस्से वाली है, ऐसे ऐसे खामों का बोल दिया. मैं एकदम चुपचाप बैठना, हिलना मत, मैं एकदम ऐसा बैठ रहा था. लिटरली आई वाज सिटिंग लाइक दिस. तो शी ऑब्जर्व, पर आपका बेटा ऐसा क्यों बैठा हुआ है, हिलता ही नहीं है. बोला मैंने ऐसा बोला है उसको आप तुम्हारे बारे में. बोला ऐसा क्या किया, फिर मुझे बहुत प्यार किया. मुझे याद है दैट सॉन्ग आई खूबसूरत हसीना. आई लव दैट सॉन्ग बिकॉज आई हैव दैट एक एसोसिएशन. फर्स्ट टाइम आई सॉ. और ऐसे बहुत गाने हैं. वैसे वो हीरा पन्ना का गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत दूर मुझे चले जाना है. इट्स अ लवली सॉन्ग. बहुत गाने हैं, डुएट्स बहुत है, बहुत बहुत है. Amit, your memories with your father, I want to ask you this. Where were you exactly when he passed away? The death was very sudden. I mean, what was that moment? I was in Canada. हाँ. I was in Toronto. टोरंटो में था. अभी टोरंटो में भी शो किया हमने, मुझे याद आया सब. I was in it was in 87. I went along with Govinda, myself, Neelam, कुलभूषण खरबंदा, असरानी जी, एंड देयर वर 2-3 सिंगर्स ऑल्सो. मतलब छोटे मोटे जो होते हैं स्टेज सिंगर्स. तो 3 तो शोज थे, 2 या 3 शोज थे. इट वाज लास्ट शो वाज इन टोरंटो. So that was on 12th of October. On 13th we were supposed to fly, 87. Nasrani ji was the comparer and he कैसा होता है उस दिन बोला आप you give a tribute to your father, the best song. Then I sang चिंगारी कोई भड़के, I remember. बहुत अच्छा हुआ था, रिस्पॉन्स मिला था. नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, when I was packing, जब पैकिंग चल रहा था, I was my father had given me a list of all the, he loved Hollywood movies. उस वक्त उसका ज़माना चल रहा था, कौन सा अपना VHS का टाइम ज़माना चल रहा था, अमेरिकन वीडियो. तो इतना लंबा लिस्ट था. तो मैंने प्लान ही किया था कि मैं एयरपोर्ट, शाम की फ्लाइट थी, तो पूरा जाके उनका जो भी लिस्ट है, उन्होंने कहा था अगर ये फिल्म्स नहीं मिले तो तेरे को मैं घुसना नहीं दूंगा घर में. तो मैं पहले से बात करके रखा था, देखो मैनी फिल्म्स. तो वही जब मैं प्लान कर रहा था तो फिर देख रहा हूँ कि एक करके, पहले तो फ़ोन आया यहाँ से बॉम्बे से फ़ोन है. तब तो ये था नहीं, सेलफोन था नहीं. तो मेरे ब्रदर ने फ़ोन किया, मैं कज़न ब्रदर देव मुखर्जी. बोला अमित कित कब आ रहा है तू? बोला मैं आ रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ. तो उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है. एवरीबॉडी वाज अमित आर यू कमिंग? मैंने क्या हुआ कि वेयर इज माय फादर? मैं समझ गया समथिंग इज आई गॉट. Was he unwell? No, that time he passed away. No, I'm saying, did he have something before? No, he had an attack about that was his third attack. He went away. Already 2 हो गया था. तो फिर शक्तिदा रोक दिए. अमित किशोर इज नो मोर, इज गॉन. तो एकदम ज़मीन हिल गया. फॉर द टाइम बिंग आई वाज, और जैसे मतलब मैं बैठ गया चुपचाप. देन एवरीवन एंटर्ड, गोविंदा, असरानी, दे वर आल्सो. कैसे उनको पता चल गया. हाँ, पता चल गया था. दे कुडंट कम. फिर आके दे कंसोल्ड मी एंड देन आई सेड ओके, जो हो गया. बट स्टिल आई वेंट, आई ब्रॉट द फिल्म सर. तो मुझे लेना ही पड़ा. वो आज भी है, वो अपने है, मतलब हमने कोशिश की उसको ये करने की, क्या बोलते हैं, जितना हो सके. बिकॉज क्लाइमेट ओवर इज़ वेरी सल्ट्री, अब क्या क्या फिल्म्स थे सब उनके, सब उनके जो he was a film buff. He loved films, watching films, थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, सब कुरोसावा, ये हो, इतना लंबा लिस्ट, माय गॉड. एलिया कजान, ब्रांडो, ये वो सब लेके आया था. पर हम भी देखते थे. Immense love between the father and son. But do you remember any moment he was very angry with you for something? It is said that he had his ups and downs and moods. No, he was angry with me because when I started smoking, I was caught. Then he was बहुत डांटा रहा मुझे. बोला इतना अच्छा वॉइस है तुम्हारा, एंड यू आर स्पॉइलिंग, यू स्टार्टेड स्मोकिंग, देन यू स्टार्टेड ड्रिंकिंग. तो वो मुझे लेक्चर देते थे कि ये वॉइस का ये टेक्सचर जो है चला जाएगा तुम्हारा. Did you obey? No, I didn't do it. I disobeyed. So
But yeah, he as a father, he had the right because he knew I had. He wanted me to be on the top here, The best. best. Yeah. But बाबा सब लोग नहीं हो सकते. Sometimes we used to argue also, मतलब not like that. But उसका उनका यही था कि क्यों तो 7 तो बज गया, जाओ शुरू करो. It was like that. He was never ये मुझे कभी हाथ नहीं उठाया और जिंदगी में he never कभी नहीं, बहुत प्यार दिया मुझे. So he used to taunt you basically. Yeah, basically he used to taunt me. बोले जाओ टाइम हो गया, जाओ पियो जाके, सिगरेट पियो. बोले वहाँ से क्यों पीते हो? बोले कहाँ से पियो? बोला पीछे से पियो. He used to hate smoking. He never liked. अब कोई उनके सामने पीता भी नहीं था. All the music directors also, पंचमदा हो जो भी हो, बोले प्लीज उन लोग जाते थे, उनको तकलीफ. Used to go. He hated smoking. इसलिए वैसा you see his voice. When filmmakers came to you and asked you to sing together, your voices were similar. But वो तो होगा ही. हाँ, तो फिर वो differentiation आप लोग को लगता था कि इतना नहीं हो रहा है. हाँ, वो देखिए, वो मैं उनका अंश हूँ तो आएगा ही वो. अभी हमने पहला डुएट मैंने किया था उनके साथ, बहुत अपने किशोर फिल्म्स में आई sang with him on many songs. Outside also लक्ष्मीकांत प्यारेलाल made us sing. जैसा वो फिल्म था प्रेम विवाह, आई थिंक, मिलते रहिए गाना अभी भी यूट्यूब में घूमता है, ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो आई sang with him. तो पता नहीं चलता, कभी कभी लगता है ये मैं हूँ या ये वो रहता है, कभी कभी आ जाता है. But that was, I would मैं credit दूंगा आर डी बर्मन एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. They sort of made me sing, balance किया. Then they said कि you just come out from that shadow. Don't deliberately try to copy him. I had my own style. उसके बाद तो मेरा जब I started singing for films like Love Story and तेरी कसम, तो अलग ही हो गया मेरा. Which was that moment, Amit, in your life that you were nervous in singing that song? You thought that maybe you're singing with Lataji or Asha ji or maybe alone. मुझे कभी nervous नहीं लगा. You thought maybe you won't be able to do it. No, Any song that was very challenging? ऐसा कभी हुआ नहीं मुझे, कभी नहीं हुआ. I never felt nervous in front of them because I knew they were all stalwarts and they loved me. अब मुझे डर था नहीं, पिताजी से मैं नहीं डरता था. मैं गाता था, मैं जैसा हो मैं गा देता था, मतलब that way. I had that. Thank God. I never कि मुझे डर लग रहा है ये हो रहा है, ऐसा नहीं था. But ये था ही नहीं. Dad ever came back to you and He used to always. ये इतना अच्छा नहीं गाया. नहीं, वो तो करते थे, वो मजाक करते थे. वो जब रहते थे, अगर आ गए रिकॉर्डिंग में, बोले अभी पंचमदा गवा रहे हैं या कोई भी, यार ये अजीब गा रहा है कुछ, उसका एक तो उसका सुर ही नहीं लग रहा है, अजीब. तो फिर वहाँ से पंचमदा बोलते थे आप जाओ ना वहाँ से, आप निकलो, आप क्यों बैठे हुए हो. आई रिमेंबर लव स्टोरी के रिकॉर्डिंग में, फर्स्ट रिकॉर्डिंग में और आशा जी गा रहे थे, कौन सा गाना, ये लड़की ज़रा सी दीवानी लगती है. दैट वाज द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ लव स्टोरी 1980-81 में. पीछे फिल्म सेंटर में कौन बैठे, राज कपूर एंड किशोर कुमार, बग 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 बहुत गा रहे. तो आशा जी ऑल्सो वॉज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब. शी सेड इतना बग बग कर रहे हैं दोनों मिलके. दे वर टॉकिंग एंड टॉकिंग. पुराने दिनों बाद राज साहब बंगला बहुत अच्छा बोलते थे. एंड यूज्ड टू कॉल माय फादर छला बाबू, छला बाबू बेटा कोई टकबो हम ये करेंगे, हाँ व्हाट आर यू डूइंग. तो फिर उसमें हम गा रहे हैं, तो अचानक पिताजी बोले पंचम कैसा गा रहा है. मैंने ही इज लिसनिंग टू मी ऑल्सो, टॉकिंग टू मी, लिसनिंग टू मी. मैंने यहाँ क्या अजीब लग रहा है, लग रहा है कोई बनिया दुकान में बनिया गा रहा है बैठ के, अजीब गा रहा है. तो पंचम बोला आप लोग निकलो ना वहाँ से, आप लोग दोनों क्यों बैठे हो वहाँ पे बेकार, निकलो वहाँ से. अच्छा तो चलो निकल, फिर दोनों निकल गए. फिर then I got more eased up, Let's touch upon his association with Rajesh Khanna. How would you describe that? Did Kakaji come home, have sessions with yes, him? Yes. Here, singing sessions? Singing sessions से ज़्यादा काकाजी, I remember the song रूप तेरा मस्ताना रिकॉर्डिंग होने से पहले there was फेमस महालक्ष्मी में सेट लगाया था शक्तिदान ने. तो हम वहाँ पे वो before that scene, if you have seen Aradhana, you must have seen. वो दरवाजा खोलते, she is standing outside of Rajesh Khanna is waiting. I don't remember. And then they come inside and then the fire is lit. तो वो शूटिंग हम देखने गए थे. अच्छा. वाह, ऐसे ही गए थे because शक्तिदान पिताजी they were very old pals, no? जी. From Bombay Talkies that time.
तो बाबा देख रहे थे, तो बोले ये है हीरो है, इसके लिए गा रहा हूँ मैं. अरे ही इज द चैप. That was the first time he came and met my father. And then, of course, ऐसा ये नहीं था कि मतलब पिताजी ने ऐसे ही गा दिया था, ठीक है. मतलब कि एक होता ना कि it was definitely S.D. Burman. And the person who really fought for my father's voice for the 3 songs was R.D. Burman. मजूमदार ने पूरा था नहीं, 3 गाना तो होना ही मांगता है. किशोर कुमार गाएगा ही. Okay. तो S.D. Burman didn't want it that way. हाँ, he wanted क्या करना है, कैसा है, क्या करें, he was, but डिसीजन पीछे जो पड़ा था that was R.D. Burman. No, ये होना चाहिए. The credit goes to him. मैं तभी भी बोलूँगा, yes. But there was something magical about Kishore and R.D. Burman together. And then it clicked. The big film clicked in a very big way. And that was the comeback of my father as a full-fledged playback singer. Yeah. And he hated the word playback. उनको अच्छा नहीं लगता था playback. क्यों? Playback, I don't know. He never. Playback क्या word है यार? I am an actor. मैं artist हूँ, मैं actor हूँ. मैं वो बोलते थे playback क्या है? एक तो उन लोग ठीक से मुंह हिलाते नहीं है, उल्टा सीधा ये करते हैं. He was very particular. अगर कोई मिस्टेक भी करे, देखो गड़बड़ किया, ऐसा मिस्टेक. He was very, मतलब प्लेबैक क्या होता है? मतलब ठीक है बाबा, अभी सब तुम्हारे जैसे नहीं है. बोले नहीं, आई डोंट लाइक द वर्ड प्लेबैक. व्हाट इज प्लेबैक? अमित, रफ़ी साहब के साथ कैसे था बाबा का? बहुत अच्छा था, वेरी नाइस. मतलब ये कहा जाता था बहुत राइवलरी है, आंख राइवल्स हैं. राइवलरी जो था दैट वाज वेरी, क्या बोलते हैं, हेल्दी ये था. लेकिन ऐसे बहुत रिस्पेक्ट था. पिताजी बहुत रिस्पेक्ट करते थे. रफ़ी साहब भी इक्वली दे हैड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. बहुत रिस्पेक्ट था. बिकॉज वो ज़माने में जो उन्होंने देखा साथ में, किसी को पता नहीं है अभी. मतलब देयर यूज्ड टू बी ए प्लेबैक सिंगर्स यूनियन व्हिच दे हैड फॉर्म्ड. गीता दत्त, किशोर कुमार, मुकेश जी, रफ़ी साहब, जी.एम. दुर्रानी, और भी सिंगर, तरत महमूद. तो एक पूरा ग्रुप था. दे हैड मन्नादा वाज कैप्टन. ऐसे थे एकदम पूरा. दे वर वेरी क्लोज. Even महेंद्र कपूर है. Yeah, later on. Yeah. But this गीता दत्त, आशा जी, लता जी, शमशाद बेगम. तो ये पूरा एक टीम था. एक जो पिताजी बोलते थे कि हम में वो सब था नहीं. Because we all struggled and came. We all made our place. You know that. But मैंने एक इंसिडेंट सुना है, I don't know if it's true. Now I want to ask you that. Rafi साहब had, reduced singing a little bit, and he was feeling a little, कि सारे numbers किशोर दा के पास जा रहे हैं. And then came this movie called हम किसी से कम नहीं, where Nasir साहब went up to Rafi साहब and said, I'll give you one song in this film. And he said, नहीं यार, इतने सारे किशोर दा के गाने हैं, इसमें मैं क्या करूँगा? नहीं, ऐसा कुछ. And then he said, नहीं, आप ये गाना गा लो, क्या हुआ तेरा वादा, और इसमें आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा. और मिला. And this was the comeback of Rafi in a way. Yes, I mean the comeback again after a lull period. Yeah, maybe yes. 7 years. ठीक है, that happens with everyone. देखिए. You heard of this, right? Yeah. But I don't know. I've never heard about that. But देखिए, ये जो है ना, हम हर आर्टिस्ट का एक टाइम आता है. My father used to sing mostly for Devanand, because he used to act. He was an actor. Before he became a star, he used to sing for only Dev Sahab, mostly. He had no time. If you see, he was the busiest star in the 50s. 1956 to 58, he gave 4-5 jubilees, 3 golden jubilees. And only Dev Sahab ke liye he used to. And तो उस वक्त भी जब फिर his film started going down, my father's film started going down, तो वो जो एक दौर था, नीचे आया है. मैंने बोला ना, ups and downs होता ही है. That time Rafi Sahab was on top. 50s, 60s, he was there. And then again my father comes. So it's like a tidal wave, you go there, you come down, you go there and come down. It happens with everyone. बड़ों के साथ हुआ है,
तो हम क्या है? Which are the actors you got close to? Now you started singing essentially for Kumar Gaurav with love story, romance. I've sung for everyone. I know it, and later it became almost everyone. Everyone. So which actors bonded with Yeah, you the most? I Because was एक जोड़ी association बन जाता है. Of course, Kumar Gaurav. There's no doubt about it. We batted for 5 years. Are you in touch with him today? No, not really. Not really. But yes, 4 साल तो लव स्टोरी के बाद तेरी कसम, लवर्स, रोमांस, these films, these 4 films, उसके बाद भी हो गया ना डाउनफॉल. This is one career which went unexplained, you know, because after doing a film like Naam, right, yes, which you can see 10 times, is Naam, yes, is also less, I would say. फिर जन्म एक सीरियल था, उसमें मैंने गाना गाया था, जिंदगी जिंदगी. So what you think, because you were close to him, what you think went wrong in his career that, you know, film started drying up? इसमें कोई कह नहीं सकता. No, ये क्वेश्चन सब लोग किसी के पास आंसर नहीं. किसी नहीं, इसमें कैसे आंसर होगा? अभी राजेश खन्ना किशोर कुमार का जो क्लिक हुआ, इट वेंट ऑफ टिल फॉर मे बी 10 years. 10 साल. मेरा और कुमार गौरव का 5 साल गया. ऐसे सबके होते हैं सब. इट्स लाइक दैट. सो इन माई लेजर आवर्स, अभी मैं आज आप आने से पहले दोपहर को मैं बिफोर आई वॉज गोइंग टू स्लीप आई वाज लिसनिंग टू आमिर खान, बिकॉज अभी जैसा मेरा घर भी ये हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है, तो मेरा ऊपर का रूम जहाँ मैं कंपोज करता हूँ, इट इज ऑल्सो बीइंग रिनोवेटेड एट द सेम टाइम. तो ये सब मैं क्या करता हूँ, सुन के जो एक फ्रेज अच्छा लगा मैं फट से रिकॉर्ड कर लेता हूँ. एंड दैट्स हाउ यू कंपोज, बिकॉज यू हैव इंस्पिरेशन तो चाहिए ही ना. हम जो बोलते हैं ना कि देखा ये मेरा है, मैं ओरिजिनल बात नहीं है. बात है यू हैव टू लिसन टू योर शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न क्लासिकल. वेस्टर्न क्लासिकल सुनना इसलिए दैट्स ऑफ कोर्स दिस इज माय ओन. ये वेस्टर्न क्लासिकल से आपको एक हारमोनी मिलता है, यू गेट द हारमोनी, यू गेट द इन्वर्जन्स वहाँ पे. हाँ, और अपना शास्त्रीय संगीत तो है, इट्स लाइक अ पूरा, इट्स लाइक एन ओशन. तो वहाँ से मुझे काफ़ी ये मिलता है, ये क्या बोलते हैं, आई गेट इंस्पायर्ड एंड देन आई मेड सो मेनी ट्यून्स. मतलब मैं 1-2 लाइन लेके देन मैं यू वोंट बी एबल टू कैच मी. ये यहाँ से मैं मार दिया, यहाँ से लिया. नो, आई एम नॉट लाइक दैट. आई डोंट डू दैट. एवरीवन हैज डन इट इन बॉलीवुड. म्यूजिक डायरेक्टर्स सबने किया, करना पड़ा. सबने पंचम दत्त बोलते थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट आई हैव टू डू इट. क्योंकि जैसा वो मिल गया, seed has to originate from somewhere. हाँ, but वो हम किसी से कम मिल गया रे, मिल गया तारा रा 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 तेरे लिए, दैट इज एब्बा का गाना था. मैं तो फट से बोल रहा था. पंचम दत्त बोले मुझे अच्छा नहीं लगा, आई कांट हेल्प इट, डायरेक्टर वांट्स इट. तो that's the year. Your association and your father's association with Bappida. We lost a legend. We lost 2 legends, of course. Yes. Lataji and Bappi gave me so many songs, and all hit songs. Mostly hit songs I sang for him. Mujhko Ye Zindagi was the biggest hit, which I sang for which film? Sailab. Sailab, and then Govinda's first picture, Street Dancer, I am a Street Dancer, super hit. Ilzam, super hit. अफसाना प्यार का आमिर खान, सुपर हिट. टिप टिप बारिश शुरू हो गई. You see Bappi Lahiri and Amit Kumar, all hits, mostly hits given. But he also made his own place. I gave hats off to him in this, rat race with Lakshmikant Parallel, Adi Burman, Kalyan Janji. Here comes a boy, and he just and he made his place. Hats off to him. He played like a king. अपना जो एक स्टाइल बनाया उन्होंने, whatever that disco या whatever he did it, and he succeeded. He had that. उसमें था एक क्या बोलते हैं, zeal था कि मैं करके दिखाऊंगा. Because competing with these stalwarts was not easy, and he did it. हिला के तो रखा था उसने, हिला दिया था. That's the word. Yeah, I heard others had got tense and yes, at that time. Of course. They were. I mean, हुआ. Lakshmikant Parallel. Okay, मतलब कि ये
आके मद्रास तो पूरा ले लिया था पूरा एक टाइम में. एंड ऑफ कोर्स ही रिस्पेक्टेड माय फादर अगेन. एंड ही यूज्ड टू से कि मैं जो भी हूँ आज मामा की वजह से हूँ. That. And my father also always guided him. Baba was always equal with everyone regarding that. बापी के लिए एक स्पेशल ये तो था because Bappi Lahiri's mother and was close to my father's sister. So you must be aware that he was unwell? हाँ. No, I never knew that. अच्छा. हाँ, इतना मुझे मालूम था. आई मेट हिम लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट फॉर द दिवाली में गया था उनके वहाँ पे घर पे. हिज बर्थडे दिवाली, आई डोंट रिमेम्बर. ओके. ही वाज सिटिंग, ही वाज नॉट वेल, ही हैड कोविड. ये जो हुआ सडन हुआ, आई वाज शॉक्ड डेफिनेटली. मैं गया नहीं. मुझे पता नहीं, मुझे वो होता नहीं है फेस करना. होता नहीं है. मैं You don't want to keep those memories, yeah. No, मैं थोड़ा, there are some things, which I want to keep it to myself. Why to show off and go? वो मेरा इस टाइप का नेचर है. Amit, it will also be interesting to ask you that there is a talk going on that Madhubala's biopic is going to be made. At least her sister is very much rooting for it and trying to sell the rights and अच्छा. producers, filmmakers. Is it? Yeah. अच्छा. Madhur Bhushan. What do you think? Should this biopic be made? What's your personal take on that? Why not? Biopic तो सबका ही होता है. Even my father's biopic, it's on the year. We have started scribbling. With Anurag Basu? No. वो अभी मैं बोलूँगा नहीं. जब तक कुछ जगह, but yes, it's on the cards. Okay. Definitely. Okay. तो why not? Because there were reports about him trying to make it with No. Ranbir Kapoor. अभी नहीं. अभी हम करेंगे तो हम तरीके से ही करेंगे. Because वो उस वक्त अलग था. अभी अगर हमको करना है, we'll do it. We'll make our own production house and we'll do it. We won't just no. Let others नहीं, handle because जो हमको मालूम है किसी को पता नहीं है ना. हाँ. And why to do it? हाँ. फिर आप चेंजेस मांगेंगे, ये मांगेंगे. ये तो एक ही बार होगा तो एक ही बार होगा. हाँ. तो if there is a biopic on Madhuji, why not? It should be made. They should be made. Biopic. I am being very honest. Now, this is, as an audience, I don't like the idea of biopic. That is my feeling. लेकिन अभी चल रहा है, it's like that. और अभी तो प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, वेब सीरीज भी है, सब है. तो मीना कुमारी का भी बायोपिक डिस्कस हो रहा है. या इनका तो पिताजी का 100% वी आर ऑन द ये. देखते क्या होता है. I still remember that quote which you gave me in your last interview. I never questioned my father about his 4 marriages. Yeah. And that was the ending of the interview. Yeah. Still, I feel, how didn't you question? I mean, I still want to ask you that you never sat down with him and said, why again? I mean, it's just a very natural thing to happen. No. I've never happened with him. Are you sure? Yeah. That way. But I never grumbled. I never. I was not angry or like that. Yeah, I always balanced. That was his personal life. और ऐसा मैंने कभी मतलब कि he wanted a family and it was he was a family man, but he was always misunderstood that way. ठीक है यार, that's life. सबका ही होता है. Everyone goes through that. आज इस घर में जो गाड़ी जो है मॉरिस माइनर, the first Morris Minor which my father brought, my mother and my father when they got married in 1950. My father's first film as a hero, Andolan. Morris Minor खरीदा था, 6,000 रुपये में खरीदा था. वो तो it's buried in this house downstairs. The day my parents got divorced, the car got inside. That was Kishore Kumar. अब तो गड़ी हुई है गाड़ी. Yes, it is there. Because they brought it together. Yeah, I can understand. But how is Leena ji now? We don't see her anywhere. No, she's okay. She doesn't go out. She doesn't go out. She's in her own year. She writes the songs for me. She writes the songs. The ones which you do on YouTube? Yeah, mostly. Okay. लीना जी कुछ लिखते हैं सुधाकर शर्मा, बस mostly लीना जी. She's a brilliant writer.
I don't need any writers. And you see the comments. Vicky, you should follow the comments on my YouTube. So she doesn't have the urge to act in some No. say, She's role not. here or She there. no, not now. No, she's retired that way. अभी क्या घर पे ही सब that way. But writing she is brilliant. क्या लिखती है एकदम. और मैं जो कंपोज करता हूँ when I compose मैं मीटर में करता हूँ. And वहाँ पे वर्डिंग्स लाना with meaning is very difficult. जैसे मेरा एक गाना है खुद का, जस्ट टेल यू, हाँ मैं हूँ बदनाम, इसमें है. तो जब मैंने गाना गाया था दा रा 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 रा, आई वाज सिंगिंग ऑन द हारमोनियम. शी रोट हाँ मैं हूँ बदनाम. यारो यही है मेरा, हाँ मैं हूँ बदनाम, यारो मेरी यही तो है पहचान, क्या सही क्या गलत कहो कोई है इस जहां में महान. फैंटास्टिक. You hear the song. And this kind of attitude yeah. you can have, and I think Kishore also had. Okay, I'm like this. Yeah, love me or hate me. Accept me. Love me or hate me, you can't ignore me. Yes. तो मेरे और एक गाना है दिल का मेरे हाल तुम न पूछो. मैंने what beautiful thought. जब मैंने किया गाना दा रा 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 दा रा 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 रा, दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, धड़कता है अब तक दिल क्या ये कम है सोचो, तिनका हूँ मैं और ये जहाँ है सागर. अब ये वाला लाइन बहुत अच्छा है. डुबाया गया फिर भी डूबा नहीं हूँ. तिनका कभी डूबता नहीं. शी रोट इट ऑन मी, दिस इज ऑन यू. डुबाया गया फिर भी डूबा नहीं हूँ. तिनका उठ के आता ही है. तो मैंने पहले ही बोल दिया कि that is also evident from this interview. And thank you so much for this lovely conversation. Thank you. Thank you, Amit. Thank you Thank you so so much. Thank you.